خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم معتکفین کے جذبات و تاثرات دیکھتے سنتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج معتکفین کے کیسے جذبات ہیں، کیسے تاثرات ہیں۔ بمبر سے آئے ہوں، آزاد کشمیر بمبر سے۔ میں پلندری آزاد کشمیر سے۔ اسلام محمد بلوچستان سے۔ میں سیالکوٹ سے ہوں۔ ضلع افساباد، تحصیل اوباڑا ہے۔ میں باول مدینہ کراچی سے آیا ہوں۔ لیاری سے۔ جی مجھے یہ بتائیے گا پیارے بھائی، کھجور روٹی کی تحریک جو شروع ہوئی ہے، پہلے روزے سے لے کر اب تک اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کہ کم ہو رہا ہے؟ الحمدللہ اس میں جو ہے جب سے امیر علیہ سنت نے یہ تحریک چلائی ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، تو روزانہ ڈے بائی ڈے جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ پرسوں جو ہے کم و بیش 510 اسلامی بھائی تھے، اور آج کم و بیش ابھی تک جو ہے یہ 630 اسلامی بھائی ہوں گے جو ابھی کر رہے ہیں، اور باقی بھی اسلامی بھائی آتے جا رہے ہیں اور اس تحریک میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ کھجور روٹی سے سحری کرنے کا موقع ملا، ماشاءاللہ کتنی دفعہ کھجور روٹی سے سحری کر چکے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے یہاں پر آگے سعادت 3 دفعہ حاصل کر چکا ہوں۔ کھجور روٹی سے جو فیل زیادہ بہت روحانیت ملتی ہے، بہت سکون ملتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ 3 انگلیوں بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا کھائیے کہ یہ سنت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ ول بسرخان باندې چې کومې دارې زارې او دانې کوټه سي دا خوړل دا د مغفرت بشارت تا۔ ہرنے والے پر یا واجد بولیے کہ یا واجد کہنے سے کھانا پیٹ میں نور اور بیماری دور ہوتی ہے۔ مینجمنٹ جو ہے نا بہت انتہائی اچھی ہے، ٹھیک ہے، صفائی کے لحاظ سے افطاری سحری کروانے والی انتظامیہ جو ہے نا انتہائی ایماندار اور مخلص ہے۔ ادھر کھانے کا بہت اچھا ہے، اس کے ٹائم ٹیبل کا بہت اچھا ہے۔ یہاں کھانے کا بندوبست دیکھا ہے تو بہت اچھا دیکھا ہے، اور صفائی لحاظ ہر 5 منٹ کے بعد ہوتی ہے، بڑا اچھا ماحول ہے یہاں کا۔ بالخصوص وہ جو کھانے کے بیچ میں کہتے یا واجدو، وہ بھی کہتے بہت اچھا انوائرمنٹ ہے۔ کھانے سے پہلے کی دعا اور بعد کی دعا یہ وغیرہ سیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کا شکر، اور بھی علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت اچھا لگا، ایسا لگا جیسے اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اور بڑے اچھے انداز سے کہتے ہیں۔ ایسے سمجھا رہے ہیں، ایسے ہم کو سہارا ملا جیسے کوئی بچہ گھومتا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ دیتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے گھومتا ہے، اسی طرح پہلے ہم کو پتہ نہیں تھا۔ کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی غصے میں بات کرنا نہیں، بلکہ ہمارے بابا جان نے جیسے ہم کو اخلاق سکھائیں اس حساب سے سب چلتے ہیں اسلامی بھائی۔ قرآن پاک کا صحیح سے پڑھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ سیکھ رہے ہیں، نماز صحیح سے پڑھنے کا طریقہ وہ سیکھ رہے ہیں۔ جو غلطیاں آتی تھی یہاں پہ کھینچنا ہے، یہاں پہ کم کرنا ہے، یہاں جو حروف ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کر کے پڑھنے کا طریقہ یہاں پہ سکھا رہے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کپڑے کی شاپ کرتا ہوں۔ کپڑے کی شاپ پہ تو رمضان کے اندر عید کا سیزن ہوتا ہے، اب چھوڑ کے ادھر آ گئے؟ بس اللہ پاک نے قبول کیا ہے تو آ گئے۔ اکرام بھائی کیا کرتے ہیں؟ فروٹ کا کام جی۔ رمضان میں تو فروٹ پہ کمائی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ کام تو ساری دنیا ختم نہیں ہوتے، دنیا کے چلتے رہتے کاروبار، ایک مہینہ یا اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ گھر والے سارے دارالاسلامی اسلامی کے ساتھ ہیں، لیکن میرا تھوڑا بہت آیا تھا کہ دارالاسلامی اسلامی سے اتنا نہیں تھا، آخر تک ذہن نہیں تھا۔ بس گھر والوں نے کہا کہ آپ جانا ہی جانا، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ بس سمجھ نہیں آئی، مجھے خود سمجھ نہیں آئی کیسے میں آ گیا وہاں پہ۔ اب ادھر آئے ہوئے ایسا لگا کہ نجات سے نکل کے پاکی میں آ گیا ہوں۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یار جن کے اولاد نہ فرمان ہے نا، وہ اپنے بچوں کی ادھر بھیج دیں، انشاءاللہ فرما بردار بن کے جائیں گے۔ وہ فرما بردار بن جائے گی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بس میں بھی نافرمان ہی تھا، گھر والے پریشان تھے، والدہ بھی پریشان تھی، والد صاحب بھی پریشان تھے، تو انہوں نے مجھے اسی نیت سے بھیجا، اور الحمدللہ کافی بدلاؤ آ گیا میرے اندر۔ ادھر سے فارغ ہوں، گھر جاؤں اور والدین کے قدموں میں گر جاؤں بس۔ نماز بہت کم پڑھتا تھا، بہت کم، سیدھی بال گناہ گار بندے ہیں، تو یہاں پہ یہ ہے کہ روزے بھی بہت کم رکھتا تھا، تو ابھی یہاں پہ جو 5 وقت کی نماز بھی نصیب ہو رہی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو روزے پورے رکھوں گا بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ مدنی مذاکرہ بھی سنا بابا جی کے پاس، دل کر رہا ان کو دیکھتے رہے، اتنی پیارا چہرہ ان کا۔ سحری کی ہے بابا جی کے ساتھ، ایک دفعہ مدنی مذاکرہ سنا ان کے پیچھے بیٹھ کے، بابا جی گزرے تھے وہاں سے، اتنا دل خوش ہوا، دل کر رہا بس یہیں بیٹھے رہے۔ اس اعتکاف میں مدنی مذاکرے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور نگران شورا کے بیان
इस एतकाफ़ के सर का ताज है। बस इधर आए थे पिछले 2017 में मुहर्रम के महीने में, फिर आज इमरान ने तरगीब दिलाई 12 माह की, फिर उसमें पहले मैंने 1 माह की नियत की तो माहौल अच्छा लगा, फिर उधर ही से मैंने 12 माह की नियत की। अभी एक 12 माह मुकम्मल हो गए, दूसरी 12 माह चल रहे हैं। अब 12 माह एक दफ़ा मुकम्मल हो गया, 17वां महीना है। अब इधर के पीके स्वाद से इस्लामी भाई लेकर आए। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दोपहर 3 या 4 बजे टिकट है, जाएंगे दीर, माशाल्लाह करवाएंगे। मैं पहले बावन नगर जब निगराना शुरू का फजर के बाद में रोजे रखता ना तो सुबह नमाज पढ़ के आगे निगराना शुरू का बयान सुनता था, बहुत अच्छा लगता था। नियत करे अब निगराना शुरू का बयान वहाँ कराची भी सुनने इंशाल्लाह ताला। मैं 2014 में इधर आया था एतिकाफ के लिए, उसके बाद मेरा ज़हन बना इंशाल्लाह दाढ़ी रखने का, इधर से नमाज और जो कुछ है सीखा यहाँ से गया। वो भी आज ही इमरान अत्तारी का बयान सुन कर मैं कराची पहुँचा था इधर। उसके बाद जो गया फिर अभी 2019 दूसरे बार आया। किसी को माफ़ करना, हिसाब किताब को ये हमको समझा रहा है निगरान साहब सुबह को सवेरे। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है मुस्कुराना, ये मुस्कुराने का तरीका हमको बताया। जो बयान हुआ था सुबह फजर के बाद, उन्हें ये बताया कि नफ़रत किसी के लिए नहीं, प्यार सब के लिए। यकीनन मैं कहता हूँ कि ये एक मुसलमान की सबसे बड़ी निशानी है। Kesenangan itu berbeda. Kalau sekedar senang biasa mungkin kita tertawa, mungkin kita senyum. Tapi jikalau senang itu sudah sangat tinggi, apalagi bisa berjumpa dengan Syekh Muhammad Ilyas Atthar Qadri, adalah satu kesenangan atau pengalaman yang mungkin cuma dapat dialami satu kali dalam seumur hidup. Jadi senangnya itu sangat-sangat senang. Jadi manusia jikalau dia sudah senang pasti ada namanya dia terharu gitu. Jadi karena sangat-sangat senangnya itu dia mengeluarkan air mata. Begitu juga saya. रिज़की भाई से सवाल किया गया कि जब खुशी होती है इंसान को तो इंसान मुस्कुराता है या हंसता है। आपसे जब मुलाकात हुई अमीर अहले सुन्नत की, अमीर अहले सुन्नत ने मुलाकात से नवाजा, बजाय आप हंसने या मुस्कुराने के आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। खुश तो रिज़की भाई ने जो जवाब दिया उसका मफ़हूम खुलासा ये है कि ये कोई आम खुशी नहीं थी, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने जीते जी अमीर अहले सुन्नत को पहली मर्तबा अपनी आंखों से देख रहा था और मैं उनके जलवों में गुम हो गया था। इस खुशी में मैं हंसना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि मेरी आंखों में आंसू निकल आए और ये खुशी के आंसू थे जो मैंने अमीर अहले सुन्नत को देख कर अपनी आंखों से बहाए। Selama berada di Faizan Madinah banyak berjumpa dengan bermacam-macam orang, dan dari Pakistan, dari berbagai macam provinsi yang ada di Pakistan. Tentu adalah satu pengalaman yang baru, dapat berjumpa dengan orang yang lain, notabene tuh lain bahasanya, lain tentang semua-semuanya lain lah. Jadi ini adalah satu pengalaman yang menurut saya sangat berharga. Dan yang saya dapat selama belajar di markas dakwah ini adalah, kalau dulu saya hanya sekedar mengetahui ilmu agama tentang sunnah-sunnah, tentang hukum-hukum, tapi soal masalah sunnah saya banyak tahu, tapi untuk mengamalkannya itu sangat kurang, bahkan tidak ada. Tapi selama saya bergabung di sini, alhamdulillah sunnah-sunnah banyak diterapkan. Di sini kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya beliau. उन्होंने कहा वाकई यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ सूबों से आने वाले और पाकिस्तान से बाहर से आने वाले इस्लामी भाइयों से मुलाकात हुई, लेकिन सब में एक ही चीज़ देखी कि वो अखलाक से और मोहब्बत से और मुस्कुरा कर हमसे मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मैं एक दारुल उलूम का स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, मैं इल्म दीन हासिल कर रहा हूँ इंडोनेशिया में, और सुन्नतों का इल्म तो मैंने वहाँ से भी हासिल किया, बहुत सी सुन्नतों का मुझे इल्म था, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क ये देखा कि दावत इस्लामी में सिर्फ सिखाया नहीं जाता बल्कि अमल भी करवाया जाता है। तो जो सुन्नतें मैंने सीखी हुई थी उस पर अमल करने का जज्बा पैदा नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्तगी हुई और इंडोनेशिया में दावत इस्लामी में मैं आया और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा हासिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। रिज़की भाई से जो है वो इंडोनेशियन ज़बान में मदनी मकसद सुनते हैं। आपा तुजुआन मदनी कीता,
Saya berupaya memperbaiki diri saya sendiri dan orang-orang di seluruh dunia. Insya Allah. जब मैं हाजी साहब का और इनका बयान सुनने लगा तो मैंने कहा सब चीज़ें एक तरफ, अल्लाह की रज़ा जो है वो एक तरफ, अब जो करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। लोग जो कहते हैं कहते रहेंगे, और वालिदैन भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो तो चाहते हैं कि मैं इस माहौल में ही रहूं। यहीं से मेवा शाह कब्रिस्तान के पास करीब रहता हूँ। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, अपनी गाड़ी है मेरी, मैं खूब वही चलाता हूँ। पहले तो पूरा महीना जो है ट्रक चलाने में गुजर जाता था, ना सीधा मैं नमाज पढ़ सकता था और ना मैं सीधे रमज़ान के रोज़े रख सकता था। तो अब जो है मैंने इस दफ़ा जो बड़े भाई हैं वो मेरे दफ्तर में बैठते थे, उनको मैंने कहा आप पहले मेरी गाड़ी चलाएं फिर आप और काम करेंगे। अभी इंशाल्लाह वो मेरी गाड़ी चला रहे हैं और मैं यहाँ इंतकाफ में। ये तो एक ऐसी वाह जगह मुझे मिली है जिसमें मुझे बलोची भी मिले हैं, पठान लोग भी मिले हैं और सिंधी भी मिले हैं। घरों में तो अक्सरियत पाया जाता है, कोई ना कोई मसले होते हैं ऐसे जिसमें हमारे बड़े मामला खराब हो जाते हैं। यहाँ आके देखा हज़ारों की गैदरिंग में लोग हैं तो बड़े प्यार इत्तेफाक से रह रहे हैं। मैं दर्जा खासा दोम के पेपर देकर आया हूँ इधर। यहाँ यजमान हमारे शहर में है, नूरुल मदारिस, तहसील है भावलपुर की। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद, एक ज़िंदगी को मकसद मिल गया। पहले भी हम दीनी लाइन पर थे लेकिन हमें अपना हदफ मालूम नहीं था कि हमने क्या करना है, किधर जाना है, क्या नहीं करना। मैं जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ। कैसे शौक बना आपका, ज़हन बना मैं जामिया में दाखिला लूँ? जामिया में यूं शौक बना कि मैं स्कूल पढ़ता था, जब मेरा एक बड़ा भाई जो मुझसे बड़ा था वो जामिअतुल मदीना में पढ़ता था, वो सब इमाम के साथ होते थे। मैं देख के मैंने कहा यार ये इसको देखो, ये मेरा भाई है। जब वो घर आते थे सुन्नत के मुताबिक घर में दाखिल होते थे और सलाम किया करते थे। मैं बस आता था, बस बैग रख के बस कपड़े भी तब्दील कभी करता था कभी नहीं करता था, ऐसे ही बस फिर जाता था बाहर गलियों में खेल के रात को आता था, रात सो जाता था, फिर सुबह को स्कूल चला जाता था। कुछ पता ही नहीं था, ऐसे जिंदगी के कुछ अयाम थे वो गफलत में गुजर गए। एक इबरत हमारे लिए आगे आ गया तो एक दिन ऐसा आ गया, फिर मैं तैयार हुआ हूँ तो मैं घर वाले रोक रहे थे, कहते रहे जामिया नहीं जाओ। वालिदैन को मैंने बाद में राज़ी किए थे, मैंने कहा मेरा शौक़ यही है, ज़्यादा नहीं तो मैं जितना मेरे ऊपर इल्म सीखना फ़र्ज़ है मैं वो इल्म तो सीख लूँ। फिर वालिदैन ने भी इजाज़त दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं मुझसे वालिदैन इतना खुश हैं। मदनी चैनल देखता था, बस इसी की वजह से आया इधर। शावर में भी मदनी चैनल देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं, और हम आपको दरख्वास्त करते हैं कि पुश्तो के लिए भी 1 घंटा दे दे चैनल पे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग समझ सके। सबकी ख्वाहिश है कि आ जाए। वाइफ के गुर्दों का मसला था, उसकी वजह से मैं रुका हुआ था हॉस्पिटल में, और अभी भी हॉस्पिटल में। वाइफ तो मेरी जैसे कि तो उसकी वजह से मेरा ज़हन बना था। अल्हम्दुलिल्लाह ये नियत करके आए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ को अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए। ज़िंदगी का पहला साल गुजरा है मेरा 35 साल में रमज़ान का, जो फजान मदीना में गुजारा माशाल्लाह में। रोज़े तो वहाँ पर भी रखते थे लेकिन जो यहाँ पर बरकत हासिल हुई है कहीं पर भी नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कोई नियत की अभी तक? फ्रेंच रखने का इरादा था तो इधर आके इरादे चेंज हो गए सारे, दाढ़ी रखने की और इंशाल्लाह मामा सजन की। मैंने नियत की है कि मैं 1 मुट्ठी पूरी दाढ़ी रखूँगा, ठीक है, कभी कटवाऊंगा नहीं। मैं भी इंशाल्लाह नियत करता हूँ कि रखूंगा दाढ़ी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। दाढ़ी भी इंशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक रखनी है, इमाम शरीफ बांध लेना है, पूरा 10 इस्लामी में आ जाना इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। जब ये दाढ़ी की बात चल रही थी रात को तो उनका अंदाज़, उनका बात करने का स्टाइल, उनकी ये गुफ्तगू, दाढ़ी का क्वेश्चन जो हुआ था, सवाल हुआ था, ठीक है, उससे अच्छा लगा मुझे। मेरा ये है कि 5 वक्त की नमाज़ी की पाबंदी करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है, दाढ़ी मुबारक सजाऊँगा। और ये भी ज़हन बनाया कि चांद रात को मदनी काफ़िले में जाएंगे 3 दिन के लिए। मेरा टोटल जो ज़हन है वो ये है कि मुझे अब मरते दम तक इसी माहौल में रहना है, और जो मतलब 72 मदनी इनाम उस पर अमल करना है। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इमाम शरीफ, दाढ़ी शरीफ, अल्लाह पाक इस पर जो है मुझे इस्तेकामत दे और साबित कदम रखे। और वो जल्द जैसे एडमिशन आते हैं तो मैं आलिम कोर्स शुरू करूँगा। कि कोई हमें कुछ बोलेगा गलत उल्टा या दाढ़ी के बारे में बोले नहीं रखो, पहले से ही मैंने सोच लिया वो जो कुछ कहने हैं मुझे उनकी बात नहीं सुननी है। हम तो अपने नबी की सुन्नत पे चलेंगे ना, नबी की बात मानेंगे। देर है दुरुस्त है, वही बात मैं कहना चाहता हूँ। पहले चलो नहीं रखा, अभी तो रखेंगे इंशाल्लाह। मदनी काफिले की भी मेरी नीयत है और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे कोर्स भी करूँगा। कौन सा कोर्स करेंगे यहाँ पे? इंशाल्लाह मैं ये तरबियती कोर्स करूँगा। मामा से सजाए हुए कितना अर्सा हो गया?
जब से यहाँ पे आए और अल्हम्दुलिल्लाह तब से शुरू किया उस पहनना, इससे पहले नहीं बांधा। कैसे जहन बना मैं इमाम मशीद से जानूं? और इस्लाम भाइयों को देखकर माशाल्लाह बड़ा जहन बना इस बारे में कि ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और बांधना चाहिए, सारे हर मुसलमान को बांधना चाहिए। किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ, मोहम्मद की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। मेरा छोटा बेटा है, ठीक है, तकरीबन 2-2.5 साल का है, वो जो ना खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए जरा मेहरबानी करें, पापा जान को बोल दें दुआ करें मेरे लिए। पापा जान से दुआ करवाएं कि आत्मी मग़फ़िरत जो है ना, ईमान पे सलामती हो, ये मेरे लिए बहुत मग़फ़िरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए बढ़ते हैं सवालात और उसके जवाबात की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज 1440 हिजरी के माह रमज़ान मुबारक की 12वीं रात है। अशर मग़फ़िरत अपनी बरकतें लुटा रहा है। आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में कसीर आशिकान रमज़ान ने इत्तिकाफ़ की सआदत हासिल की हुई है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। हमारे साथ पाक बगदादी का बीना सराय आलमगीर ज़िला गुजरात पंजाब, पाक तोगीरवी का बीना जमालपुर ज़िला बहावलपुर पंजाब, हजीरा कश्मीर सरदाराबाद वगैरह भी शामिल हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद सलीम रजा अत्तारी अहमदपुर शर्किया महराब वाला से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में यह सवाल है कि अक्सर लोगों को ये देखा जाता है, कुछ कम अकली की वजह से कहते हैं कि भाई जो बंदा ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना तरावीह पढ़ता है, तो लोग ये कहते हैं कि जी इसको रमजान शरीफ की आमद की क्या मुबारकबाद देना, ये तो रमजान शरीफ की कदर ही नहीं करता। और दूसरा अक्सर ये भी देखा जाता है कि ईद वाले दिन कुछ लोग कहते हैं जी इसको ईद मुबारक किस चीज की दे रहे हो, इसने तो रमजान शरीफ के रोजे ही नहीं रखे। ईद तो उनकी होती है जो रमजान शरीफ के रोजे रखते हैं या रमजान शरीफ का एहतराम करते हैं। तो इस तरीके के जुमले मुखातिब होकर कहना कैसा है? क्या ये दिल आजारी में आता है, तकब्बुर में आता है, या ये जुमले जो है ना खुद पसंदी में आ जाते हैं? इस मामले में हमारी रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। जो रमज़ान मुबारक में फ़र्ज रोज़े नहीं रखता है बड़ा गुनाहगार, बुरा बंदा है। और नमाजें तो सारा ही साल फ़र्ज है, रमज़ान शरीफ में भी बदस्तूर फ़र्ज है। तरावीह ये इजाफी इबादत है जो सिर्फ रमज़ान शरीफ ही में की जाती है। तो बहरहाल ये कि जो इस तरह नहीं करता वो अच्छा आदमी तो नहीं है। अलबत्ता रमज़ान की मुबारकबाद उसे देने में हरज नहीं है कि रमज़ान हर मुसलमान के लिए बरकत वाला है। इसी तरह ईद तो जिसने नऊज़ु बिल्लाह रमज़ान शरीफ के रोज़े नहीं रखे, ईद की नमाज उस पर भी वाजिब है। तो इस तरह यह कि अगर उसको ईद की मुबारकबाद पेश की तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। अब ये कहना उसको कि तुमने रोजे नहीं रखे, तुमको रमजान की मुबारकबाद नहीं देंगे, तुमने ईद नहीं
या रमज़ान के रोजे नहीं रखे तुमको ईद मुबारक नहीं देंगे, तो ज़रा इस तरह नाराज़ी और फिर झगड़े मुनाफरत भी फैल सकती है। तो बहरहाल लेकर उसको ईद की मुबारकबाद देने में कोई हरज भी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब्दुल समी बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, सवाल ये है कि रोज़ी में बरकत कहते किसे हैं? क्या ये तनख्वाह बढ़ जाना ही रोज़ी में बरकत है कि कुछ और भी इसके मायने हैं? बरकत ये कि जो चीज़ मिली है वो जम जाए, लेकिन ठहर जाए, ये भी है। और यूँ लुग़वी तौर पर ये कि बढ़ जाए, जैसे तनख्वाह बढ़ गई तो ये भी एक तरह की मतलब दुनियावी एतबार से बरकत ही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि बाज़ लोगों को नमाज सीखने की तरगीब दिलाते हैं तो वो ये कह के टाल देते हैं कि कबूल करने वाला अल्लाह है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? बराए करम इरशाद फरमा दीजिए। ज़रा कि नमाज जैसी पढ़ने का उसने हुक्म दिया, उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म अता फरमाया, तो वैसे ही तो नमाज पढ़ेंगे। तो वरना तो नमाज होगी तो कबूल और ना कबूल का मसला हो। अगर ऐसी गलतियां की कि जिससे नमाज ही फासिद हो जाती है और फिर वो नमाज तो नमाज नहीं है ना, तो फिर कबूल होने की क्या मतलब इसमें सूरत है। जैसे अब किसी ने रोजा रखा और थोड़ा थोड़ा खा भी लिया करे और अल्लाह कबूल करने वाला है, तो ये मतलब ज़ाहिर है कि बात जमती नहीं है। तो इस तरह ये बेचारे बस हैं जो मालूमात की कमी की वजह से कमजोर बातें करते रहते हैं। माशरा बहुत मतलब बिगड़ चुका है, बड़ा काम करने की जरूरत है। तो प्यार मोहब्बत से ही ऐसों को समझाया जाए, झाड़ डांट के समझाएंगे तो बिल्कुल और दूर हो जाएंगे। मोहब्बत से समझाया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप दर्जी हो, कपड़ा सिए और जेब उसने जितनी की थी उससे छोटी कर दें, एक जेब का कहा था आपने दो जेब लगा ली, तो आप बोलेंगे मैंने ज्यादा ही कर लिया ना, गाहक कबूल कर लेगा। अब गाहक कबूल करेगा या उठाकर मुंह पर दे मारेगा, जब उसको देंगे तो पता चलेगा ना। तो ये क्या जरा उसकी बात तो दर्जी तो मानेगा तभी काम चलेगा ना। एक मिसाल दी मैंने। तो बहरहाल अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक हमें इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए और कबूलियत की उसी से उम्मीद रखी जाए। SMS के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, 24-25 हज़ार तनख्वाह है, मगर जनाब इसमें बरकत नहीं है। कर्ज़ हर रोज़ बढ़ता जा रहा है और महंगाई बहुत है, घर में सुकून नहीं, हर वक्त ज़हनी दबाव रहता है। कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे बरकत आ जाए, कर्ज़ उतर जाए और घर में भी सुकून आ जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब इसमें यह कि अपने अखराजात पर भी नज़र रखिए कि खर्चा क्या करते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह के ज़रूरी गैर ज़रूरी खर्चे होते रहते हैं। अब बस में जाना है तो रिक्शे में बैठ गए, टैक्सी में बैठ गए, तो यार खर्चा तो बढ़ा ना। बस में बैठ के तो कम खर्चे में सफ़र तय हो जाता। इस तरह खाने पीने के ताल्लुक से चावल कई किस्म के आते हैं। अब बहुत कीमती चावल लेने के बजाय बंदा दरमियान ना ले। इसी तरह दीगर मामलात, सब्जी, तरकारी, गोश्त, दाल, इनमें सब में कम ज़्यादा भाव की चीज़ें मिलती हैं। तो अगर ये थोड़ा किफ़ायत शियारी, जो कर कसर बोलते हैं हम लोग, कर कसर करेंगे, किफ़ायत शियारी करेंगे, कम खर्च में गुजारा करेंगे, फजूल इधर उधर ज़ाया नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बचत की सूरत बनेगी और बरकत भी पैदा होगी। वरना दो हाथ से खर्च करते रहेंगे तो कहाँ से बचत होगी। तो 25,000 या 50,000 भी पूरे नहीं होंगे, नहीं होते लोगों को पूरे। लाख क्या लाखों रुपए महीने के खर्च करते होंगे करने वाले। मजीद विरद भी आपको बताते हैं। नमाज चाश्त के बाद
या बासितो 100 मरतबा पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ी में बरकत होगी। इसी तरह या ज़ल जलाली वल इकराम 100 बार हर नमाज के बाद पढ़कर हलाल रोजगार के लिए दुआ करने वाले को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिज़्क़ हलाल मिलेगा। इसके अलावा और भी औराद हैं, तो अगर आप चिड़िया और अंदाज सांप, एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, छोटा सा रिसाला है, तो वो अगर आप हासिल करके देख लेंगे तो पेज नंबर 25 से इसके औराद, मतलब ये रोजी वगैरह के ताल्लुक से इसमें 32 यानी 32 रूहानी इलाज दिए हुए हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि क्या अखराजात के जो घर के होते हैं, उस घर में जो खर्चा करना होता है, तो इस हवाले से भी कोई शेड्यूल बनाने में भी ना तजर्बाकारी का भी उनसर शामिल होता है कि तजर्बा नहीं होता और खर्चे बढ़ा बैठते हैं, फिर आमदनी को रोकते हैं कि काम में। हाँ, वो अखराजात के लिए कोई ऐसा अपना जदवल भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो बाजू का पक्का ज्यादा लेते फिर वो इधर उधर रुलता है, और खरीद ज्यादा लाते हैं फिर वो सड़ता रहता है। तो इस तरह हस्बे ज़रूरत अगर ख़रीदारी हो, हस्बे ज़रूरत पकाया जाए, रोटियां भी उतनी बनाई जाए हिसाब से कि जो पूरी हो जाए, सालन वगैरह इतना ही पकाया जाए, मिर्च मसाले हस्बे ज़रूरत ही डाले जाएं। ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, तेल ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा। तो ये सब अगर किफ़ायत शियारी के साथ और अपना कोई जदवल के मुताबिक करेंगे तो अल्लाह करेगा बचत होगी। हिसाब पूरे महीने का अगर इस तरह लगाया जा सकता है कि रोज का इतना खर्चा, इतना इसका, इतना खाने का, इतना नाश्ते का, इतना, अल्लाह करेगा बरकत होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। ये जो घर में सुकून भी आ जाए, तो क्या ये असल में इसमें जो आप फरमा रहे हैं वो यही है कि आपस में कुछ बैठ के मशवरा किया जाए। आज मगरिब से इशा भी निगरान शुरा का जो एक सिलसिला था, तो उसमें भी कुछ इसी मौजू की मुनासबत से गुफ्तगू थी उसमें कि भाई आप 3 महीने में कुछ बजट पे अपने बच्चों की अम्मी के साथ कोई जायज़ा ले लें। तो ये घर में जो बेसुकूनी या बाद औक़ात मामला तो शायद इसकी भी एक वजह यही बनती होगी। बजा फरमाएं। अगर भूल कर कुरान पाक को बगैर वुज़ू छू कर पढ़ने के बाद याद आया कि मेरा वुज़ू नहीं था, तो क्या शरई हुक्म होगा? अरे बेचारे को पता ही नहीं है, इसमें क्या हुक्म लगेगा? गुनाहगार भी नहीं कह सकते इसको। जो पढ़ा वो नमाज तो है नहीं कि चलो उसको दोहरा लिया जाए। हाँ, नमाज बेवुज़ू पढ़ ली तो दोहरा नहीं होगी। कुरान करीम को दोहराने की जरूरत नहीं है। जब कुरान करीम बेवुज़ू भी पढ़ना दुरुस्त है, बगैर छुए। छुआ, बेवुज़ू छुए कुरान करीम को टच करे, ये गुनाह है। लेकिन अब उसने, उसको पता ही नहीं था कि वुज़ू है या नहीं है, याद ही नहीं था बेचारे को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद मतीन अत्तारी है। मैं दारुल मदीना का तालिबे इल्म हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अहसन अत्तारी है। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। आमीन। हमें मदनी चैनल से बहुत प्यार है। हम इंशाअल्लाह मदनी चैनल देखते रहेंगे। तारीफ सरदार बासियास कर रहा हूँ। मैंने सारे रोजे रखे हैं और स्कूल भी जाता हूँ। मैं भी पूरे रोजे रखने की नियत है और आप दुआ फरमा दें। मेरा सवाल है कि आपने बचपन में रोजा पहले कब रखा? मैं मोहम्मद तारी सरदाराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे पापा जान, अगर रोजे में मुंह में कड़वा पानी आ जाए और खुद ब खुद हलक में चला जाए तो क्या रोजा टूट जाता है? माशाअल्लाह, मदनी मुन्ना पूरे रोजे रखेगा, नियत की इसने। मरहबा, अल्लाह इस्तिकामत दे। और मेरे बचपन में कब रोजा रखा ये याद नहीं है। हमारे दौर में वो रोजा कुछ शाही और ये जो आजकल जो धुम धड़क का होता है ना, तो ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग वैसे गरीब लोग,
ये शायद जो थोड़ा खानदान बड़ा हो, थोड़ा पैसे की चमक हो, ये लोग हो सकता है कि रोज़ा कुशाई करते हों, मेहमान जमा करते होंगे, तो ये हो सकता है कि ऐसा होता हो। मेरा कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा, ना हमारे घर में कभी इस तरह का कुछ हुआ। हम लोग रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह जब से आँख खोली हमने अपने घर में नमाज रोज़े देखे, और मैं कभी कभी कल भी अर्ज किया था शायद, तो मगर ये इस तरह का हिसाब किताब हमारा नहीं होता था। दूसरे मदनी मुन्ने ने कड़वा पानी आ गया माना फैज़ान मदीना में, उसमें खट्टी डकार आने से रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे डकार आने से पानी हल्क तक आ जाए और वापस भी लौट जाए तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, तो इसी तरह कड़वा पानी आ गया मुंह में और वो आ गया और चला गया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सगी अतार मोहम्मद अंजुम रज़ा अत्तारी, सरदाराबाद फैसलाबाद से। सईदी ये इरशाद फरमाए कि आजकल हर कोई एक दूसरे की टो में पड़ा रहता है, कौन क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, बस इसी तजस्सुस में लगा हुआ है। इस बुरी आदत से किस तरह जान छूट सकती है, बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। वैसे तजस्सुस और टो में पड़ना, इसके माना है किसी के गुनाह की खोज लगाना। तो अब ये कौन क्या कमा रहा है, कितना कमा रहा है, इसको तजस्सुस और टो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कोई क्या कमा रहा है या क्या खा रहा है इसकी उसमें पढ़ना ये गुनाह की टो नहीं है। अब उर्दू में ये बहरहाल टो और तजस्सुस इस्तेमाल होता है, वरना ये कि कुरान करीम में जो वला तजस्ससु और तजस्सुस में मत पढ़ो, तजस्सुस ये जासूसी, तो वही कि गुनाहों की टो में मत पढ़ो, किसी के उगलवाने की कि नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, रोजा रखते हो कि नहीं रखते, ये पूछते होंगे एक दूसरे से आप रोजा रखते हैं कि नहीं रखते। तो इस तरह पूछने के बजाय हम मतलब यानी कि उसको रोजे के फजाइल बताएं, या किसी जरिए से पता चल जाए, या खुद वो बोल पड़े, बोल देते हैं, आसरा ही नहीं करते, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोजा नहीं रखते, तो ऐसों को समझा जाए कि रखा करो, पढ़ा करो वगैरह। बहरहाल ये कि किसी के जाती मामलात में वाकई यानी कि वो इंटरेस्ट होता है। अब जैसे अभी मदनी मुन्ने ने बोला, पूछा मुझे आपने बचपन में रोजा कब रखा था, तो अभी इस तरह की मालूमात करने में हरज नहीं है, लेकिन बाज बातें ये कि वो फजूल होती हैं, मतलब कोई मकसद नहीं होता। और ये मालूमात करना कि कब बचपन में पहला रोजा कब रखा था, अब ये कोई अच्छी नीयत हो तो फजूल नहीं है, वरना अल्लाह बेहतर जाने। तो किसी ऐसी शख्सियत के बारे में ये मालूम हो जाए कि वो पहला रोजा कब रखा, तो बच्चों के लिए तरगीब हो, बच्चे भी उस टाइम पे रोजे रखने की तरफ बढ़ जाए, ऐसी कोई नियतें हो सकती है सूरत के अंदर, वालिदैन वगैरह ने अगर सवाल कराया हो? हाँ, हो सकता है, सवाल तो करवाया ही होगा। बच्चों में इतना, बाज बच्चे बहुत शार्प होते हैं, या अपने तौर पर भी सवाल करते होंगे, तो बहरहाल तो ये कि फजूल सवालात होते हैं कि जैसे वो शाम को चला था कि अपना नफा किसी को ना बताया जाए, नजर लगने का खतरा है, वाकई नजर लगने का खतरा है, लेकिन लोग टो में पड़ते हैं क्या आमदनी है, दिहाड़ी कितनी बनती है आपकी, माहाना तनख्वाह क्या मिलती है, कब से नौकरी करते हो वहां पर, सेठ कैसा है। अब सेठ कैसा है, ये थोड़ा गीबत के दरवाजे को चाबी, ताले को चाबी लगाना। वो सेठ से तो सेठ अगर सोने में तोल भी दे तो शायद सेठ अच्छा ना हो, सेठ से नौकर कहाँ राजी होगा। सास कितनी भी अच्छी हो, बहू कहाँ उससे खुश होगी, बहू कितनी अच्छी हो, सास कहाँ उसकी तारीफ करेगी। ये जनरल बात करता हूँ, हर सूरत में ऐसा ना हो नहीं है, लेकिन उमूमन मतलब ऐसा हो कि वो सेठ और नौकर से भी सेठ का खुश होना बड़ा मुश्किल है। हडाराम है, हडाराम काम करता है, जब देखो बातें बनाता रहता है, काम के लिए भेजो 2 घंटे निकाल के आता है। तो ये बाज़ का इसमें गुनाहों की सूरतें बनती है कि वो सेठ कैसा है, या शादी होगी तो सास कैसी है, लड़ती है, ये पूछती होंगी औरतें।
बीवी कैसी है, मगजमारी तो नहीं करती, झगड़े तो नहीं करती, ये माँ बहनें पूछती होंगी भाई को। ये मतलब गुनाहों के दरवाजे इस तरह खुलवाए जाते हैं कि ये कैसा है, वो कैसा है, फुला कैसा है, और ये भी फिर वो बोल पड़ता है। मुश्किल ये तो गुनाह की अगर कोई बात उसमें है तो बोलना नहीं चाहिए। वो एक हिकायत मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने तफसीर नईमी में लिखी है इस तरह की कि एक शख्स की शादी हुई और बीवी से उसकी अनबन हो रही थी, तो वो किसी ने पूछा कि क्या मसला है आपका दोनों का, तो उसने कहा कि मैं घर की बात आपको कैसे बताऊं, घर की बात बताना तो कोई मतलब बेगैरती की बात है, ये मियाँ बीवी के मामला। उसने इस तरह उसने उसको टाला, फिर आखिरकार वो तलाक हो गई। अब उसने पूछा कि अब तो बता दो कि वो तलाक हो गई, तो कैसे हो गई? तो उसने कहा कि अब ये मेरे लिए अजनबिया हो गई ना, मेरे अब वो मेरा उससे कोई रिश्ता तो रहा नहीं, तो मैं एक गैर औरत के मामले में नहीं पड़ता। यूं उसने इस पर भी पर्दा डाल दिया कि कैसे तलाक हुई और वो कैसी थी, लड़ती थी, झगड़ती थी वगैरह। अब ऐसे तो करोड़ों में कोई हो यार, बाकी तो वो तलाक देने से पहले ही वो डंके बज रहे होते, वो दोनों पार्टियां एक दूसरे को ठीक ठाक जी भर के बुरा भला बोल रहे होती है। तो अस्तगफिरुल्लाह, इतने गुनाह के काम हो रहे होते हैं जिसकी इंतहा नहीं, और तलाक होने के बाद तो फिर और मतलब बुराइयां, एक दूसरे की गिबतें, तोहमतें, ये होता है मतलब हमारे यहाँ बदकिस्मती से। तो ये सब अगर जबान का कुफले मदीना सही मानों में लग जाए, दिमाग को कुफले मदीना लगे तो फिर जबान को लगे, दिमाग को कुफले मदीना नहीं लगा, दिल को कुफले मदीना नहीं लगा, तो बस बक 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 बक। और गुनाहवरी गुफ्तगू इतनी होती है, इतनी होती है, इतनी होती है कि बाज़ औक़ात ये कि जैसे कोई गुनाहवरी गुफ्तगू करता भी है ना, तो सही बात है समझ भी नहीं आती। मुझे तो कई बार ऐसा होता है कि बात होती है, फिर अरे यार ये बात उसने की, यार ये तो रॉन्ग नंबर लगा रहा हूँ मैं भी, यार इसके साथ लगा हुआ था, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। फिर बात होगा मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो सुनी जाती है, तो जहाँ ऐसा होता है कि मेरी सुनेगा, मैं तो फिर उसको समझाता हूँ, पैगाम देता हूँ कि यार आपने जो गुफ्तगू की इसकी हाजत क्या थी, मुझे भी, मैं भी फंस गया यार, सुनने में मुब्तला हो गया, कुछ बोल दिया मैंने भी, तो मैं तौबा कर चुका हूँ, आप देख लें। फिर माशाअल्लाह अपने इस्लाही भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तौबा करते हैं, मुझे पैगाम देते हैं कि मैंने भी तौबा की, कि वाकई है मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये भी अल्लाह का करम है। ये नफ्से लव्वामा, नफ्से अम्मारा तो बड़ा शरीर है, वो सेट नहीं होता, वो गुनाह पर उभारता ही रहता है, गुनाह करवा देता है। और नफ्से लव्वामा उसको बोलते हैं कि जो मलामत करता है, शर्मिंदा करता है, वो तवज्जो दिलाता है कि ये तुमने क्या किया, क्यों किया, ये नफ्से लव्वामा है। तो अल्लाह करे हमारा नफ्स अगर नफ्से लव्वामा हो जाएगा ना, तब भी गुनाहों से इंशाअल्लाह बचत की सूरतें होंगी, और कभी खुदा ना खास्ता फंस गए तो ये नफ्से लव्वामा तवज्जो दिला देगा कि ये तुमने किया ठीक नहीं किया, करो तौबा इससे। ये एक मतलब ज़ाहिर प्लस है, अल्लाह हम सबको नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुलजार तैयबा से नईम इकबाल बात कर रहा हूँ। मुझे सवाल आपकी बारगाह में ये अर्ज करना है कि आजमाइश और अजाब में क्या फर्क है? आजमाइश और अजाब, जी जी आजमाइश और चीज़ है, अजाब और चीज़ है। आजमाइश तो अंबिया किराम पर भी आई अलैहिस्सलातु वस्सलाम, साहबा किराम पर भी आई। करबला वालों की आजमाइश तो बच्चा बच्चा यूँ अगर कहें तो जानता है। तो ये आजमाइश थी, और आजमाइश में पास होने वालों के लिए तो जन्नत
की आला नेमतें, जबकि अजाब तो गुनाहों पर होगा, कुफ्र पर होगा। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अजाब ये सजा है, आजमाइश और चीज है। हाँ, मुसीबत कभी बतौर सजा भी आती है, इससे गुनाह मिटाए जाते हैं मुसलमान के, तब भी इसको अजाब नहीं कहेंगे हम, ये आजमाइश है, मुसीबत है, इम्तिहान है। बाज़ औक़ात जैसे बाबा जलजले और इस तरह के जो मामलात होते हैं, तो ये एक मतलब बातें होती हैं कि ये जैसे गुनाहों का अजाब नाजिल हो गया, ज़मीन फट गई, लोग आग अंदर हो गए, बिल्डिंगें गिर गईं, तो इस तरह के भी कुछ गुफ्तगू इस मौजू पर होती हैं। इसमें यह कि इसमें कोई शक नहीं कि जलजला लोगों के गुनाहों की वजह से आता है, ये तो फतह रज़विया शरीफ में मौजूद है। और अब ये किसके हक में यानी सजा है और किसके हक में क्या है, इसमें कि हर एक का अपनी अपनी नीयत पर है। जैसे जो गुनाहगार था तो ये उसको मतलब इस तरह मार दिया गया, और जो नेकूकार था, नेक बंदा था, तो उसको उसकी नीयत पर उठाया जाएगा। और ये उसके लिए कि उसके लिए मौत तो सबके लिए, तो उसको इस तरह मारा गया, इसको इस तरह मौत दी गई, और ये इसके लिए मतलब ज़ाहिर है जो भी मुसीबत आती है मोमिन के लिए ये अजर का बाइस है। तो यूं मतलब जलजला भी ये सबके हक में ये नहीं कह सकते कि अजाब है, अपनी अपनी नीयत पर हर एक क़यामत के रोज उठेगा। अहादीस में इसके मज़ामिन इस तरह के मौजूद हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप बड़े अच्छे लग रहे हैं आज माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए, और हमें भी कोई तरीका बता दें, हम भी अच्छे लोगों के सामने लगने वाले बन जाए। अच्छा, हम भी अच्छे लगे, कोई तरीका बता दीजिए। अब देखो ना, मैं अच्छा आपको लगा, अब ये अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मेरी ज़रा हौसला अफजाई तो होती है इससे, लेकिन ये कि ये हुस्न नज़र है आपका, मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूँ या अच्छा लगता हूँ, ठीक है ना, ये आपकी मोहब्बत की वजह से। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, इसके लिए इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है, बगैर सिक्योरिटी के बाहर नहीं निकलता, धमकियाँ मिली हुई हैं, बहुत कुछ हुआ हुआ है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। मैं मेरे मरने का इंतज़ार करते हैं वो लोग, बल्कि मार डालने का मौका तलाशते हैं। अल्लाह इनके शर से हम सबको बचाए, हम सबको मतलब दुश्मनों से, जालिमों से महफूज रखे। तो ये अपनी अपनी नज़र की बात है, मोहब्बत की बात है। तो अब ये कि हम भी अच्छे लगें, अब इसके लिए तो अब जाहिर है कि मैं भी किसी को अच्छा लगता हूँ, किसी को अच्छा नहीं लगता हूँ, और हर एक का यही तकरीबन होता है मामला कि सबको वो अच्छा नहीं लग रहा होता। अब ये कि हम सबको किसी को अच्छा लगने और किसी को बुरा लगने, इस फेर में पड़ने के बजाय अल्लाह की बारगाह में हम किस तरह अच्छे हो जाए, ये तरकीब हो जाए ना, तो मदीना मदीना। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बाइस तकरीम, इज्जत वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। तो हम अगर परहेजगार बनेंगे, नेकूकार बनेंगे, नमाजी बनेंगे, सुन्नतों के पाबंद बनेंगे, दीन की खिदमत करेंगे, तो और अल्लाह राजी हो गया तो हम अच्छे हो जाएंगे। फिर अल्लाह चाहेगा तो बंदों को भी अच्छे लगेंगे, वरना बंदों को अच्छे ना भी लगे नो प्रॉब्लम, बस अल्लाह की बारगाह में अच्छे रहें। उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीधी नज़र, मीठी नज़र हम पर रहे ना, तो बेड़ा पार है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। फेसबुक पेज पर सवालात का सिलसिला है, अगर कोई जगह रहने के लिए ली लेकिन बाद में नीयत बदल गई और उसको बेच दिया तो क्या उस पर ज़कात होगी? यानी अगर फ़कत नीयत तब्दील हुई है तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है। यानी वो जगह ली थी रहने के लिए, फिर इसकी नीयत तब्दील हो गई कि वो जगह उसने बेचनी है, अब तक तो ज़कात नहीं है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं वो बेच दी है, तो बेच दी तो जो रकम आई है रकम पर शराइत के एतबार से फिर ज़कात लाजिम होगी। मुबीन अकबर
पूछ रहे हैं कि क्या क़यामत जब कायम होगी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, काबा और रोज़ा रसूल, इसका क्या होगा? लफ्ज तबाह, लफ्ज फना तो है, मतलब कुल्लु मन अलैहा फानि व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, तो जो कुछ इसमें वो सब फना होगा। और रब का चेहरा, यानी वो चेहरे का लफ्ज है, अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। तो वो तो फिर भी वो ऐसे अल्फाज ना बोले काबे का, रोज़े का, किसी शे का नाम लेकर, मुक़द्दस शे का, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, तो इन पर जो सब पर एक आन के लिए मौत का वादा तो आया, लेकिन वो डायरेक्ट फिर उसी तरह हयात हैं, जिस्मानी तौर पर भी हयात है अंबिया किराम, हमारी आंखों पर पर्दा है। तो ये कि सबको मौत आएगी, इस्राइल अलैहिस्सलाम जो मलकुल मौत है, इनको भी मौत आएगी और मौत को भी मौत आएगी, मौत को भी मार दिया जाएगा, शैतान को भी मौत आएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये इनके बारे में कि ये जो चीज़ें हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके साथ क्या होगा, किस तरह होगा। बाकी ये कि अहादीस का मज़मून है कि काबे को फिर क़यामत के दिन दुल्हन की तरह जो है वो मैदान क़यामत के अंदर लाया जाएगा। इसी तरह मसाजिद हैं तो ये भी इसी तरह मैदान क़यामत में लाई जाएंगी, आइम्मा मुज़िन उसको लेकर आते होंगे। अब कुछ ऐसी है अशिया जो जिनको फना नहीं की जाएंगी। वो आपने अभी अंबिया कराम के हवाले से जो वादा है, पूरी लिस्ट है यार, वो को क्या क्या चीज ये बताएंगे इंशाअल्लाह। आपने अभी एक वजाहत फरमाई कि अंबिया कराम के हवाले से कि इन पर एक आन जो वादा इलाही है वो होना, इसका एक अशआर में इसकी एक वजाहत है, अगर वो अशआर सुना दे। आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फकत आनी है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी मगर आने वाहिद के लिए, मामूली, यानी कि बस मौत आई और चली गई, यूं समझ लो। इसके एक दो और शेर भी हैं बाबा। अब फिर मिसले साबिक हयात, वही जिस्मानी, अभी पूरा याद नहीं मुझे। कोई नात खान नहीं है आपके पास? नात खान है, लेकिन मैं भी डर रहा था जाते हुए इनकी तरफ। क्यों है? मेरी तरफ दिल खुला हुआ आपका, आपसे डर लग रहा है। आप मेरे पीर साहब हो जी। खलील भाई, अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, फिर उसी आने के बाद उनकी हयात, वही जिस्मानी
जिस्म पुरूर भी रूहानी है, पाँव जिस खाक पे रख दे वो भी, पाँव जिस खाक पे रख दे वो भी, पाँव जिस खाक पे रख दे वो भी रूह है पाक है नूरानी है। माशाअल्लाह। बेशक जब क़यामत आएगी अल्लाह पाक के ज़ात के अलावा हर चीज़ फना हो जाएगी, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो फना नहीं होंगी। इमाम बुरहानुद्दीन इब्राहिम लिक़ानी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी ने जौहरुत तौहीद की शरह हिदायतुल मुरीद में उनकी तादाद तकरीबन 15 लिखी है। वो ये हैं: नंबर 1 अर्श, नंबर 2 कुर्सी, नंबर 3 4 लौह कलम, नंबर 5 जन्नत, नंबर 6 अहले जन्नत यानी जन्नत में मौजूद फरिश्ते और हूरें वगैरह, नंबर 7 जहन्नम, नंबर 8 अहले जहन्नम यानी जहन्नम में मौजूद फरिश्ते वगैरह। वो अजाब में नहीं होंगे, वो अजाब देने वाले फरिश्ते। नंबर 9 रूह है, नंबर 10 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अजसाम यानी बॉडीज, नंबर 11 शुहदा किराम रहिमहुमुल्लाह सलाम के बदन, 12 उलमा किराम के बदन, हामिलीन कुरान यानी कुरान करीम हिफ्ज करने और उस पर अमल करने वालों के बदन, नंबर 4 रिजा इलाही के लिए अजान देने वालों के अजसाम यानी जिस्म, नंबर 15 अजबुज़्ज़ंब यानी इंसान की रीढ़ की हड्डी में मौजूद चंद इंतहाई बारीक अज्जा यानी ज़र्रात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। अगर सेठ के बगैर हमने लकड़ी उठा के किसी को दे दी तो इसके लिए क्या हुक्म है? मेरा नाम वकार है। ठेकेदार जिस जगह काम करता है वहाँ अगर बंदा कोई आकर ये कहे मुझे थोड़ी सी मिट्टी दे दो, ठेकेदार उसे दे देता है, जबकि ठेकेदार उसका मालिक नहीं। उसका ऐसा करना कैसा है? यानी जिस चीज के खुद मालिक नहीं है ना मालिक ने इख्तियार दिया है, तो अब ये के मालिक की चीज किसी को नहीं दे सकते। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब वो इसी तरह का था, लकड़ी दे दी मालिक की इजाजत के बगैर। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं अलहाज हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसा नासखा मुबल्लिग दावत में बन जाऊं। माशाअल्लाह। चलो, अच्छों की रीस करना, हिर्स करना अच्छी बात है, लेकिन ये कि आवाज अच्छी होना जो है बड़ा इम्तिहान है। आम तौर पर जिसकी आवाज अच्छी होती है ना, उसका बेचारे का तरकीब में रहना थोड़ा दुश्वार होता है। कुछ अरसे तरकीब में रह भी जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नफ्स उसको घेरता रहता है, फिर आगे पीछे बाजुकात बंदा हो जाता है और तकलीफ में आ जाता है। यानी तकलीफ में इस तरह के बस अमली तौर पर तकलीफ में आ जाता है, उसको तकलीफ का एहसास नहीं होता। तो ये कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उस पर हमें राजी रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया से सवाल है, ये कहना कैसा कि अगर अल्लाह पाक के कामों में लग जाएं तो अल्लाह पाक आपके कामों में लग जाएगा? इसमें अल्फाज थोड़े से एहतियात के साथ इस्तेमाल कर लिए जाएं। वैसे ये मफ़हूम है रिवायतों का कि जो अल्लाह के कामों में होता है अल्लाह ताला उसके कामों में होता है, तो यानी अल्लाह तबारक व तआला उसके काम बनाता है, तो यूँ कहना दुरुस्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक सवाल आया है, ये वॉक या वाक वाली कमेटी रखना जायज़ है या नहीं?
اس کی وضاحت یہ کہ یہ وقف والی کمیٹی اس طرح ہے کہ 10 بندوں نے 1 لاکھ کی کمیٹی رکھی. جب کمیٹی کھلنے کا ٹائم آیا تو وقف کرنے لگے یہ کمیٹی کتنے میں لیں گے. مطلب یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کمیٹی کتنے میں لیں گے. کوئی کہے گا 1000 میں لیتا ہوں, کوئی کہے گا 2000 میں. اب اس طرح وقف لگتا جاتا ہے, جہاں وقف رکے گا وہ کمیٹی اس کو اتنے پیسے میں دے دی جائے گی, اور وہ پیسے ان کمیٹی کے سارے بندوں میں تقسیم ہوں گے. کیا اس طرح کی کمیٹی رکھنا جائز ہے؟ محمد ابراہیم کا سوال ہے. آکشن کمیٹی کہلاتی ہے, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے اس طرح کرنا. ٹھیک. حسنین رضا کا سوال ہے, اگر کسی کا بچہ بیمار ہو اور وہ بہت دعا کرے مگر آرام نہ آئے, اور وہ یہ کہے کہ شاید میرے گناہ اتنے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی, یا مجھ سے اللہ پاک ناراض ہے, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اپنے گناہوں پر تو خیر بندے کو ندامت ہونی چاہیے کہ میں بہت گناہ گار ہوں, تو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ تو سب کی دعا قبول کرتا ہے, گناہ گاروں کی بھی قبول کرتا ہے, لیکن ہمارا نیک بندوں کی بھی قبول کرتا ہے. بعض اوقات نیک بندے کی قبول نہیں کرتا, گناہ گار کی قبول کر لیتا ہے. اس کی مثالیں فضائل دعا جو اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے اس میں ہے. جیسے کسی نیک بندے نے دعا کی, بہت دعا کی, قبول نہیں ہوئی, اس نے مطلب پھر اس کو کہا گیا کہ تو گڑ گڑاتا ہے, میرے سامنے آوازاری کرتا ہے, تو مجھے تیرا یہ انداز پسند ہے. یحییٰ بن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ دعا کرتے تھے لیکن دعا کا اثر ظاہر نہ ہوتا تھا. انہوں نے اللہ سے فریاد کی تو پھر ان کو جواب یہ ملا کہ تمہارا گڑ گڑانا ہم کو پسند ہے, تو گڑ گڑائے جاؤ, تو یہ پسند ہے. مطلب تو اس لیے ان کی دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر کرنے میں تاخیر ہوئی. اور بعضوں کا وہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہوتا تو اس کو دے کے ٹال دیتا ہے, یہ بھی ہے. مطلب تو اس لیے دعا بہرحال سب کی قبول ہے, کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے, لیکن یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارا انداز اللہ کو ناپسند ہے, اس لیے وہ عطا کر رہا ہے اور ہم پھولے جا رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے یہ ہم کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بس ڈرتے رہنا چاہیے. کام ہو جائے تو بھی بندہ ڈرے, نہ ہو تو بھی ڈرے, اور ڈرتا رہے ہر وقت اور عاجزی کرتا رہے. تو یہ اس طرح مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں اس لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی وغیرہ. گناہ گار تو سمجھے اپنے آپ کو, مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے امید رکھے, اور اللہ کا دروازہ چھوڑ کر جائے گا بھی کدھر بندہ, اور کوئی دروازہ ہی کون سا, تو اسی دروازے پر پڑا رہے, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, یہ شعر درست ہے کہ نہیں؟ رہنمائی فرما دیں. یہ بہت پرانا شعر ہے اور ایک عرصے سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں. صحیح تو ہے یہ, مطلب یعنی کہ مجھے پچھلے خیالات تنگ کرتے ہیں, ٹینشن میں ڈالتے ہیں, یا اللہ کو ایسی ترکیب ہو جائے کہ میں یہ سب اپنے غم بھول جاؤں. اس کے مفہوم یہی بن رہا ہے. آوانا بیٹھے بیٹھے کون اپنے مطلب کے حافظے کو ختم کرنے کی دعائیں کرے گا؟ یہ بس ایک لفاظی ہے, لفاظی الفاظ کا کھیل ہے, مفہوم یہی بنتا ہے جو میں نے عرض کیا. اب اگلے نے کس سینس میں کہا خدا بہتر جانے, ہم تو ظاہر الفاظ کی بات کریں گے. ظاہر. جی. یوسف بھائی کا سوال ہے, اس میں الہی یا واجد کے معنی کیا ہیں؟ وضاحت فرما دیں. یا واجدو جو ہم کھانے کے لقموں پر پڑھتے ہیں, جی, ایجاد کرنے والا. جی جی ہاں, اس کے انگلش میں بھی لکھا ہے کریٹر, اس کے ترجمے میں ایک جگہ لکھا ہے یا واجدو, ایجاد کرنے والا, کریٹر بنانے والا, کریٹر وجود جی ہاں, میں لانے والا, وجود میں لانے والا. نہیں, بطور ترجمہ تو ٹھیک ہوگا لیکن کریٹر اللہ تعالیٰ کو کہنا درست نہیں ہوگا. اچھا. جی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ توقیفی یعنی جو ثابت ہیں
وہی بولے جاتے ہیں، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو انگلش میں جس طرح بولیں گے کریٹ کرنے والا ہے، لیکن باقاعدہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ بھی تو کہا جاتا ہے ہی از دا کریٹر آف آل کائنڈ آف تھنگس ان دا ورلڈ۔ ٹھیک ہے، اس طرح کہنا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن باقاعدہ یوں کہنا کہ وہ کریٹر ہے، یہ فی الوقت تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کہا جائے کہ یہ نام یہ کہ جو ثابت ہو وہی نام اللہ نے بطور نام یہ لفظ نہیں بولا جائے گا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اچھا، ایک اور سوال آیا ہے احمد بھائی کا، اسلامی بہن کو چہرے کا پردہ کرنے کا کیا حکم ہے، فرض ہے یا واجب ہے؟ علماء نے حکم تو دیا ہے، باہر شریعت میں بھی اس کا حکم ہے کہ چہرہ کھولنا اجنبیوں کے سامنے جائز نہیں ہے۔ ہاں، چہرہ چھپائی گی۔ ٹھیک ہے۔ بلال عاشق اوکاڑا سے ان کا سوال یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک عشق مجازی نہ ہو عشق حقیقی حاصل نہیں ہوتا، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا جواب دیا جیسے کو یار، ان کو کیا پتا عشق حقیقی ہوتا کیا ہے؟ تو مجازی اور حقیقی، ہم کو اللہ اور رسول سے پیار ہے، بس یہ حقیقی ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی دنیاوی مفاد نہیں ہے، بس اللہ سے پیار ہے، اس کے نبی سے پیار ہے۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو باقی ابھی عشق مجازی تو آج کل جو یہ غیر مرد اور غیر عورتوں کا یہ آپس میں جو حساب کتاب ہے، اس کے لیے عشق مجازی بولتے ہیں، تو یہ کیا اس عشق مجازی کے ذریعے عشق حقیقت تو پہنچے گا؟ شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ کہ ہم رحمان تک پہنچیں گے، شیطان کو ہٹاؤ، ہم مصطفیٰ کے ذریعے خدا تک پہنچیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور سوشل میڈیا پہ سوال آیا ہے وارث علی بھائی کا، یہ سنا جاتا ہے کہ اگر امام صاحب کو نماز میں کوئی چیز بھول جائیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مقتدیوں میں کسی کا وضو یا غسل درست نہیں ہوگا، اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس طرح کی ہے تو صحیح کہ مقتدیوں کی وجہ سے بھی امام کو بھول پیدا ہوتی ہے، مقتدیوں میں کوئی کمزوری ہوتی ہے نا طہارت وغیرہ کی، تو اب امام صاحب بھول جائیں اور کوئی غل گھپاڑا ہو جائے تو امام صاحب مقتدیوں پر ڈال لیں، تو یہ نہیں پھر کوئی ہنگامہ محشر کھڑا ہو جائے مسجد میں۔ تو امام صاحب کو اپنی بھول اگر ہے تو قبول کرنی ہوگی، کہ یہ کوئی وہ تھوڑی ہے کہ وہ کہ ہم کسی پر یہ بولے کہ اس کا وضو صحیح نہیں تھا اس لیے میں بھول گیا، وضو اپنا صحیح کیا کرو، تو یہ اس طرح کی مطلب ترکیب نہ ہونی چاہیے، اللہ سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ میں نے ایک جگہ نماز پڑھی تھی، ایسا ہوا تھا جب امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو سلام کے بعد امام صاحب نے مقتدیوں کو نصیحتیں فرمائی تھی، آپ لوگ وضو صحیح کر کر آیا کرو، یوں کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ میں خود پرسنلی اس جماعت میں شامل تھا، اس لیے مجھے یاد رہ گیا۔ اسی طرح کا ایک تراویح بہت پہلے کا واقعہ ہے کہ تراویح ہو رہی تھی، وہ بار بار بھول رہے تھے، تو وہ نماز وہیں توڑ کر انہوں نے پیچھے منہ کر کے نماز توڑ گئے، جی کھڑے کھڑے لیکچر دینا شروع کر دیا، اور لوگ حیران کہ آواز کہاں یا اردو میں۔ توبہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابو ارقم محمد ریاض عطاری قبلہ امیر اہل سنت نے ایک سوال کے جواب میں کم سنی اور قبل ولادت انتقال کر جانے والے بچوں کی احادیث مبارکہ کے مضامین کی روشنی میں والدین کو خوشخبری سنائی کہ ایسے بچے بروز قیامت اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اب سے تقریباً 2.25 سال پہلے میرے ایک 16 سال کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اپنی اس 16 سالہ زندگی میں مرحوم نہ کبھی چلے پھرے، نہ کبھی کوئی بات چیت کر پائے، نہ خود سے کبھی کچھ کھایا پیا، اپنی ساری زندگی وہ بیڈ پر ہی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور ان کی امی کو جو توفیق دی
اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت، قبلہ امیر اہل سنت کی ترغیب و تربیت، جو مقدور بھر اس کی ہم پرورش اور نگہداشت کر سکے، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ لیکن وہ حصہ، وہ سعادت پانے کے لیے کہ ایسے بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں، سیدی امیر اہل سنت سے مدنی التجا ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سعادت کو پانے کے لیے ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہم اپنا ایمان لے کر قبر میں اتر جائیں۔ اللہ کریم 16 سال کا تو بالغ تو ہو گیا، اب آیا وہ بالکل مجنون تھا یا عقل سلامت تھی، کہ بعض معذور ہوتے ہیں عقل سلامت ہوتی ہے، تو پھر تو وہ بچے کے حکم میں آئے گا نہیں، نابالغ کے حکم میں۔ اللہ کریم آپ کو صبر عطا فرمائے۔ اور یہ بچہ ہی جنت میں لے جائے گا ایسا تو نہیں ہے نا، سب سے بڑے شفیع تو ہمارے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت کا دروازہ تو یہی کھولیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ محبوب کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے رسول اللہ کی بارک میں میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جو پشتو زبان پٹھان یہ جنوں کی زبان ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں گے۔ پشتو جنوں کی زبان، جنوں کی زبان ہے۔ بیچارے پٹھان بھائی آزمائش میں آ جائیں، ہمارے یہاں ویسے اعتکاف میں کئی پٹھان بھائی، تو جنوں کی زبان جو ہے نا یہ مختلف خطوں میں ہوتے ہیں، تو یہ عربی بھی بولیں گے، اردو بھی بولتے ہیں، جہاں یہاں والے اردو بولیں گے، اپنے یہاں والے سندھی بولیں گے، ہندی بولیں گے، میمن زبان بولیں گے، یہ جہاں ہوتے ہیں کئی زبانیں بھی جانتے ہوتے ہوں گے، تو یوں پشتو بھی جانتے ہوں گے جو وہاں خیبر پختونخوا کے جن ہوں گے، یہ مختلف زبانیں بولتے، ایک ہی زبان بولنا وہ ضروری نہیں ہے، اور جس کے گھر میں رہتے ہوں گے اس کی زبان ان کو سیکھ لیتے ہوں گے، سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہوگی، چاہے اس کے مادری زبان کچھ اور ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کیا مسجد کی چھت پر جوتے پہن کر جا سکتے ہیں؟ مسجد کی چھت پر تو ویسے بھی بلا ضرورت نہ جائے کہ مکروہ ہے مسجد کے چھت پر جانا، اور مسجد کے چھت بھی مسجد ہی ہے تو چپل پہن کر جانا وہ تو مزید بے ادبی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی گھڑی تیار رکھیے گا، یہ 12 سیکنڈ کا یہاں ٹائم ہوگا۔ ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ جی امین بھائی، یہ ظلمت یہ نہیں ہے، زواں سے آئے گا، زواں سے شروع کرنا ہے، زوئیں سے۔ ٹائم پورا ہو گیا آپ کا ٹائم، امین بھائی ٹائم پورا ہو گیا، یعنی یہ کو معاف کر کے آگے سے ہم لے لیں؟ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، آپ کو زواں سے لینا پڑے گا۔ نہیں آپ کا ٹائم پورا ہو گیا امین بھائی، یہ مائک اب جائے گا محمود بھائی کے پاس۔ ظالم ڈرا رہے ہیں، آنکھیں دکھا رہے ہیں، ظالم ڈرا رہے ہیں، آنکھیں دکھا رہے ہیں، آقا تو جلد آ کر اصل میں یہ شعر بھی مجھے لگتا ہے شاید کہیں سے آپ کو اشارہ یا اچھا یوں، ماشاءاللہ، اللہ اور آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ظالم ڈرا رہے ہیں، جی پورا شعر دکھا رہے ہیں، آقا تو جلد آ کر عطار کو سہارا۔
सहारा में अलिफ है या हा है आखिर में? सहारा अलिफ है ना? ए शाफे उमम शहज़ी जा हले खबर लिल्ला हले खबर मेरी लिल्ला हले खबर। राह जी महमूद भाई। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। या नबी मुझको मदीने में बुलाना बार 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 आऊं बने आखिर मदीने में मज़ार। राह रुख दिल है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नबियुनल आमीरुन नहीं फला अहदुन अबर्र फी क़ौलि ला मिन्हु वला निअमी। मीम्स जी। मुआफ़ फज़ल व करम से हो हर खता, या रब हो मग़फ़िरत पर सुल्तान अंबिया, या रब बलगल उला बिकमालिही कशफ़ दुजा बिजमालिही हसुन जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। है हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह मुर्शिद पर करम हो बेशुमार, सोए हैं कदमों में आकर सब्ज गुंबद देख कर। राह जी। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यारे मदीना। हो करम सरकार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। राह इरफान
جو ہم نادیدہ محرم نہیں مصطفیٰ مسند ارشاد پر نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا چلا ہوں لے کے یہ موتی در نبی کے لیے یہ چشتی سہر وردی نقش بندی یہ چشتی سہر وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے اچھا اب جو ہے وہ فا نہیں ابھی 2 نعت خوان باقی ہیں. اچھا فا آپ کی باری ہے فا سے پڑھنے کی. ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ لدی تھی کیا کیسے قافیے تھے روی تھی روی تھی کیسے کیا قافیے تھے یہ بڑی ہے یہ ناز سے انداز ہمارے نہیں ہوتے چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. جی ایک اور پڑھنا ہے مجھے. جی ہاں یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. میم عجب الخلیل بھائی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. جی امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ تو ایک راؤنڈ ہوا, مزید کچھ اور. اچھا اب یہ ہے کہ کل ہم نے وہ 3 یا 2 ایک حرف کے بارے میں ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا کہ شروع کے 1 یا 2 حرف ہم بیان کریں اور شعر کو ہمارے ناطقان سمجھیں گے کہ اس سے آپ کیا شعر مراد لیتے ہیں. میں 2 کلمے پڑھتا ہوں. جی میرے کریم. اب یہ میرے کریم سے کون سا شعر ہے؟ میرے کریم جی سے گر یہ نہیں آپ پورا شعر سنا دیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. ترنم سے. اچھا یہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. کیا آپ کی مراد یہی شعر تھا؟ جی ہاں. چلیں ماشاء اللہ جی امین بھائی لائن سے. پاپا اگر یہ در بے بہا کا تھوڑی وضاحت یہ الگ الگ کیا در بے بہا نے کہ انمول موتی دیے انمول. سبحان اللہ. ہاں جی امین. دریا بہا دیے در بے بہا دیے ہیں عطا فرمائے. جی نفس بدکار. جی نفس بدکار محمود بھائی. نفس سے بدکار. نفس بدکار
دل پر قیامت توڑی عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. جی حضور. نظر ایک آپ بہت آسان کر رہے ہیں حضور. جی اشفاق بھائی. اچھا اشفاق بھائی تو پھر تھوڑا وہ ہو گیا چلے. جی اشفاق بھائی. نظر ایک چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن ہی نثار ہے. عجب اس کے گل گل بہار ہے بہار گل بولے گلزار ہے. مرادیں مانگنے. حضور ایک اور حرف دے دیں. سے. مرادیں مانگنے سے. جی وقت پورا ہو گیا. جی حضور آپ کا وقت پورا ہو گیا. مرادیں مانگنے سے. جی حضور آپ شعر بیان کر دیں کیونکہ یہ نہ نہیں ہو سکا. مرادیں مانگنے سے پہلے ملتی ہیں مدینے میں. ابھی بھی نہیں. ہجوم جود نے روکا ہے بڑھنا دستے حاجت کا. جی تو اب ہمارے پاس رہ گئے 4 نعت خان. ویسے ہی وہ مشکل انہیں کہ 5 موقع دے ہوئے. ان کو ایک موقع دینا چاہیے. دے دے. نفس میں یہ بھی اسے مشکل ہے. نہ آسمان. محمود یہ تو آپ پڑھ لیں گے. یہ وقار بھائی کی باری ہے. نہ آسمان. نہ محمود بھائی کو موقع دینا چاہیے نا وہ مشکل شعر دو. محمود بھائی کرچ اصل ترتیب کے ساتھ ہم چل رہے تھے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. جن کی باری تھی نا ابھی ہاں وقار بھائی کی باری ہے ان کو شعر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ آسمان. جی اور حرف کو. وقار بھائی مدد چاہیے آپ کو. آسمان کو یوں سرکشی نہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. آنے کی طرف اب کتنے رہ گئے ہیں؟ اب عبد الخلیل بھائی ہیں. پھر ان کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. نہیں پھر وہ دوسرا راؤنڈ ہم کریں گے. اچھا تیسرا وہی. جی عبد الخلیل بھائی وہی. دھوم. چلو اب تو ہو گیا یار. وہی دھوم کی ہے ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے. دوبارہ پڑھیں خلیل بھائی. وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. صحیح پڑھیں. ماشاءاللہ. مرحبا. یہ مرحبا. جی امیل اس نے کچھ اور بھی آپ کرنا چاہیں گے؟ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. اس کا یہ ایک مصرع ہے. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. کیا
کریں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس. جی امین بھائی. جی یہی ہے. نہیں یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے. کیا کریں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس. اس سے اس کا پہلا مصرع وہ کیا کچھ تھا؟ اور ہے. سر بھی چلے میں امین بھائی معذرت. سے پانی پانی کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس. حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. جی کون اٹھائے؟ اللہ اکبر اپنے قدم پر خاک پاس حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس کمر کے قدم گئے تھے. جی اس کا پہلا مصرع سنانا. یہ دوسرا مصرع ہے. لکھے لو ہی جے. نہ یہی دوسرا مصرع پڑھا نا آپ نے. ہاں میں نے دوسرا پڑھا. ارے پہلا ان کو پڑھنا. ہاں پہلا ان کو سنا لیں. اشفاق بھائی آپ تو پڑھ سکتے ہیں. امین بھائی بھی پڑھی تھا اس کو. میں بھی پڑھ سکتا ہوں, محمود بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں کلام ذہن میں آ گیا کون سا یہ؟ سرور کشور. جی وقت تو پورا ہو گیا. خلد کا ستارہ جی. کوئی بھی نعت خان نہیں پڑھ سک رہا. نہیں مطلب پہلا مصرع پڑھنا ہے. کوئی ہمارے اسلامی بھائیوں میں سے مسجد کے اندر سے جو پہلا مصرع سنا دے. وہ برج بدہا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو ستارہ چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے. ماشاءاللہ. اچھا بہشت ہے. ہاں زیر ہے بہشت. میرے خیال میں بہشت ہے. فیضان سنت میں بہشت جب نبی مشکل کشا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا. ماشاءاللہ. اب ایک اور مرحلہ بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی کرتے ہیں. ایک اور مرحلہ بھی ہے جس سے زیادہ حضور. اب وہ اس میں کیا کہیں گے آپ چوتھے مرحلے میں؟ جی کیا ہوگا اس میں؟ اس میں یہ ہے کہ میں کسی بھی کلام کا ایک شعر پڑھوں گا اور پھر اس میں جو ہے نا وہ مقطع پڑھیں گے. یہ اس میں یہ کہ ناخواں اسلام بھائی جو وہ یا تو اس کا پہلا شعر پڑھیں گے مطلع پڑھیں گے. مطلع پہلا شعر. جی. اور دوسرا یہ کہ یہ کلام کس کا ہے. کس کا ہے. واہ. جی نہیں یہ کوئی بھی کلام کا ایک شعر پڑھیں گے. آپ نے اس کلام کا پہلا شعر پڑھنا ہے اور آپ نے اس یہ بتانا ہے کہ کلام کس کا ہے. ٹھیک ہے. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا واہ کیا جود و
बदहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। किसका कलाम है ये? तेरी सरकार में लाता है रज़ा को शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। किसका शेर है, किस किताब में है? हदाई के बख्शिश में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का शेर। कलाम है वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा। जी जवाब दुरुस्त है हुजूर? जी मेरे सुन्नत जी जवाब दुरुस्त है इनका। सुभान अल्लाह। जी दूसरा शेर। आज ले इनकी पनाह आज मदद मांग इनसे फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जी वो ज़िशान गया साथ ही मुर्शिद रहमत का कलमदाद गया। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम का शेर है और कलाम है और हदाई के बख्शिश में। इतनी देर तक होती दे मुसहफ़े आरिज़ नसीब हिफ्ज़ कर लूं नाज़िरा पढ़ पढ़ के कुरान जमाल। मतलब भी बताइए जी किसका कलाम है, कौन सी किताब में है, ये भी इरशाद फरमाइए। जी अशफाक भाई। कलाम तो शहनशाह सुखन मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, मतला याद नहीं आ रहा और वक्त खत्म हो गया है। वकार भाई आपको मतला? आपको भी नहीं। आपको अब्दुल खलील भाई मतला नहीं। अमीन भाई आपको मतला याद आ रहा है? नहीं अशफाक भाई ने ये हमारे पढ़ा नहीं जाता मतलब नहीं मतलब इसलिए मैं चाह रहा था ये पूरा हो जाए। मतलब आपको याद आ रहा है? नहीं अशफाक भाई ने नाम तो बताया ना वो किंग का कलाम। पहला शेर याद आ रहा है? मतलब पहले शेर को कहते हैं महशर मुनअक़िद कर। जी एक मिनट अब्दुल खलील भाई कुछ कह रहे हैं। बज़्म महशर मुनअक़िद कर इस तरह कुछ शुरू होता है कलाम। जी महमूद भाई आपको भी नहीं आ रहा? किसी भी नात खान को मतला याद नहीं आ रहा तो मतला आप सुना दें। मुझे भी याद नहीं है, मेरे नात खान हार गए तो मैं भी हार गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमजानी कसौटी और ये आज की शख्सियत, आज की रमजानी कसौटी है हमारे मरकजी मजलिस शूरा के रुकन निगरान मजलिस मक्की रीजन बाबुल मदीना कराची हाजी अमीन अत्तारी। आप भी तैयार रहिएगा। मैं बाबू तो वो कराने वाला हूँ नहीं आपस में उतर के। ये आप भी तैयार रहिएगा। अमीन का माविन बन जाओ। आज अमीन का आज हाजी अमीन को अकेला ना करने दे। ठीक है जी हाजी अमीन स्टार्ट ले बाबा। जी जी हाजी अमीन भाई आपका वक्त होता है शुरू। जी घड़ी लगाएं। नहीं करिश्मा ही पहुंचाएगा ये बेचारे आजमाइश में आ गए यार। तभी तो बापा कोई तब्दीली हो सकती है ना। सवाल शुरू ही नहीं हुए। माफी खौफ मरहबा लब्बैक। जी आपकी मुरादी शेर देखो ना, मैंने भी हार कबूल कर ली ना। अब ये क्या आपको भी जरूरत हो तो हार कबूल करने में क्या हर्ज है? आपकी मुरादी आपके साथ है ना, आपके साथ है ना। हारना जीतना तो है ही नहीं ना। आप जहां पहुंचे ना अवाम को पहुंचना है, पहुंचने में कामयाब है तो ठीक है, ना पहुंचने में कामयाब है तो आपके पीछे पीछे तो यही। माशाअल्लाह। चले आज अमीन। आपकी मुरादी शेर इंसान है? जी नहीं।
जी हाजी अमीन। कोई मकाम है? जी नहीं। 2 जी घड़ी फौरन बदलते रहें। कुरान पाक में इसका तस्करा है? जी नहीं। 3 सवालात पर आप जी नहीं पर हैं, थोड़ा तामुल के साथ। आपके पास वक्त हाजी अमीन? इनको थोड़ा वक्त ज्यादा दे देते हैं, रियायत अकेले हैं ना। ये तो ऐसा है, वो है मतलब शेर है। हेलो आज में ना क्या बताओ। लो कोई किताब है? हार अल्लाह जी नहीं। यानी किताब भी नहीं है, मकाम भी नहीं है, इंसान भी नहीं है। फरिश्ते? जी नहीं। या आपने किसी का लुकमा ले लिया और आपने सवाल कर दिया? सवाल था मेरा। आपको लुकमा ना दे, आप अपने समझ सोच से करें। अल्लाह अकबर। जाहिरी आंखों से देखा जा सकता है उसको? तो बातनी आंखें कौन सी हैं? होती जी हाँ, होती जाहिरी आंखों से देखा है तो सवाल वैसे ये बनेगा, सर की आंखों से देखा जा सकता है यूं? ठीक, सर की आंखों से देखा जा सकता है। शायरी भी तो सही जाने यार, सवाल confuse कर दो क्या? ठीक है, देखा जा सकता है। हाँ देखना मुमकिन है, देखा जा सकता है, देखा चलो, जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। यानी आपको आसान हाथ भी लगा सकते अमीन हैं, आपके लिए तो बस यानी आसमान ऊपर है कि हाथ पहुंचे नहीं आपका, बस बस और बोलो। पाँच सेकंड तकरीबन। आज मदनी मुज़ाकरे में कोई तस्करा है इसका? जी नहीं। कितने सवाल हो गए इमाद भाई? 7 हो चुके। अमीन भाई आपके तकरीबन 4 सवालात रह गए। सिर्फ एक जी हाँ आया है। नहीं, जी हाँ है ही नहीं। आंखों से हाँ देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जमीन पर है ये भी बता दिया पापा ने। और 5 सेकंड है, ये मैं आपको अर्ज नहीं, कर या देता मेरे हूं। सुनत ने नहीं बताया, जमीन पर है। वक्त खत्म हो गया, ये मैंने बता दिया है। पापा ने फरमाया आसमान पर नहीं है, बस और बोलो। पर नहीं, वो जमीन पर। 8वें सवाल का वक्त खत्म हो चुका है। असल वो बेचारे कंफ्यूज हो गए, जैसे ये दूसरे सही है ना, फुला जगह है, यूं भी तो करते होते हैं, तो यूं फिर ये कि कोई तरकीब बन जाती है पहुंचने में। जी कराची बाबुल मदीना में, आपने मरकजुल औलिया में सवाल भी आपने ऐसी किया है, ये जो हाथ लगाया जा सकता है, सोचा भी आपने और रास्ता भी आप बता रहे हो। जिस तरह शख्सियत और बाजू का जो पहुंचने के लिए जो है वो अगर वजह शोहरत नहीं मिलती तो मज़ार शरीफ के जरिए पहुंचा जाता है। जैसे नाले पाक, अब तो माशाल्लाह नाले पाक मंसूब हमारे पास तशरीफ फरमाए। बाबुल मदीना में? जी नहीं, जी नहीं। नाले पाक किसी नबी से निस्बत है? ये सबब शोहरत नहीं। दसवां सवाल है ये, और मेरा ख्याल है एक ही जी हाँ हुआ है। जी हाँ। हाजी इमरान ने मुझे ये सवाल दिया है, रमजानी को सुन। एक इशारा दे दें इनको, मुश्किल दी है आपके लिए। अमीर सुन्नत इनको एक इशारा। आपके लिए ये क्या, वो कुछ तारीखों में लिखी हुई है, तो इस तरह इत्तेफाक है कि आपके है। तो मुझे भी नहीं अमीर पता है। सुन्नत एक इशारा दे दें इनको। हाजी अमीन मतलब को, मैंने वो तैयार आई है तो आप तक पहुंच गई है, मैंने भी देखा नहीं है। हाजी अमीन को इशारा दे दें। 10वां सवाल हो गया, हो दे दें इशारा। आपने ज़ियारत की है? आपने ज़ियारत की हाजी अमीन? मेरा गालिब अगलब गुमान है, क्योंकि वो यकीनी तौर पर खबरिया जुमला, यानी आपने अगलब गुमान है, ज़ियारत की है आपने, देखा है उसको। अब छुआ नहीं छुआ ये कुछ कह नहीं सकता मैं, हो सकता है छूने की भी सादत हासिल हो, क्या पता।
कुरान करीम के जुज़दान, जब कुरान करीम की तिलावत करनी है, ऊपर जुज़दान होता है तो उसको अंडर शूटर को उसको हाथ से ही खोलते हैं, तो छूना पाया गया। 10वें सवाल का वक्त तो वैसे खत्म हो मक्के पाक में जी हाँ हाँ ने जरा की समझ पी है अजर अस्वद जो भोसो गिरी आयो यानी कंफर्म नहीं ना पाके छुआएंगे ना अजर अस्वद के चुबी आएंगे ना। आपने बहुत वाज़े इशारा भी दिया है। कितने सवाल? 10 हो गए ना जी। बस एक ही बाकी है। पहुंचे अब मेरा ख्याल है, जल्दी निकलो। काबतुल्लाह शरीफ से इसको कोई निस्बत है? जी हाँ पहुंचे अब तो। दरवाजा काबा आपको पता सोने का बना हुआ है, हाथ ऊंचा करके छूना तो मुमकिन है, लेकिन अब कंफर्म नहीं कह सकते कि इन्होंने छुआ है। ज़ियारत तो गालिब गुमा ने की होगी बाबे काबा की, वो अपने सवाल कितने बाकी? अपने यमानी सवाल अब शायद उसको भी हो सकता है छुआ हो, सिफर बाकी ज़ियारत की हो, और मिजाब रहमत ने उसको छूना जरा उसको मुमकिन नहीं है, मुमकिन यानी मुश्किल तरीन है मिजाब रहमत को छूना। इससे अब चेंज हो सकता है ना दोबारा में जी दोबारा। अब वो जिसको आप कहते बताने का तरीका, तो इसमें चेंज भी तो हो सकता है ना। हाँ अभी इख्तियार तो मिल गया इनको, इख्तियार हो मिल सकता गया। है कि बेचारे बदले और फंस जाएंगे, यानी कुछ भी अभी कुछ भी हो कहने सकता है। ऐसा नहीं है। जी आपकी मुरादिश हजर अस्वद है। आपका जवाब अफसोस कि जी हमें नहीं। जो मुरादिश है वो कुछ और है। अफसोस के नहीं मजान, अमीर सुन्नत की मुरादिश है कुछ और है। तो हाजी अमीर नाथखों का जवाब दे दी। नहीं, अब तो मदनी फीस के साथ ही नाम चलेंगे ना, जो आगे चलेंगे। ना ये मेहनत बद हाजी अमीन करी न पुजियो काबे शरीफ तरक बेचारा पुजी भी हाँ ये मलाई खाई ना तो बाबा नहीं हाजी अमीन तो काबे इंशाल्लाह पहुंच। हाजी अमीन को एक और मौका दिया गया है। सुभान अल्लाह, कितनी चीजें हैं बाबा काबे में है, माशाल्लाह। कितनी चीजें। जी हाजी अमीन फरमाइए, माइक खोल कर फरमाइए। आप जो भी काबे में दीवार काबा भी तो है यार, इसकी भी जियारत हो सकती है, छुआ जा सकता है। आपकी मुरादिश दरवाजा काबा, बाबे काबा। वहाँ है बाबे काबा, तशरीफ फरमाए, लेकिन मेरी मुरादिश है कुछ और। अभी चलो तीसरा मौका बाबा, चलो तीसरा मौका। आखिर मुख्तलिफ चीजों के नाम लेंगे तो कहीं तो शायद कहीं तो है। आपकी मुरादिश है गिलाफ काबा। जवाब दुरुस्त है, खूब आंखों से लगाया है गिलाफ काबा। खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा। खूब आंखों से लगाया है गिलाफे से महबूब के पर्दे काबे जलवा देखो। इस शेर का माना बता दें, क्या इसकी तशरीह क्या होगी बाबा? हाजियों से फरमा रहे हैं आला हज़रत कि खूब आंखों से लगाया है गिलाफ काबा। ये तो आसान है कि आपने आंखों से अपनी गिलाफ काबा बार बार लगाया, खूब लगाया। कसर महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। यहाँ अब वो आंखों से लगाने का तस्करा नहीं है, सिर्फ ज़ियारत का तस्करा है कि अब प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक कसर महबूब, कसर ने महल, तो महबूब के महल के पर्दे का भी जलवा देखो। एक तरफ गिलाफ काबा को आंखों से लगाना, इसका अपना लुत्फ है, और कसर महबूब के पर्दे की जियारत, जलवा देखना, इसका अपना सुरूर है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुछ सवालात किए जाएंगे। ये सोशल मीडिया से सवाल है साजिद हुसैन भाई का, मुक्तदी अगर कादा आखिरा में अभी दुरूद पाक पढ़ रहा हो और इमाम साहब सलाम फेर दें तो मुक्तदी को क्या करना चाहिए? क्या इमाम साहब के साथ सलाम फेरना वाजिब है? अत्तहियात पूरी पढ़ ले, दुरूद शरीफ ना पढ़े, अत्तहियात तो पूरी पढ़ के सलाम फेर ले। अत्तहियात तो पूरी पढ़ना जरूरी है। मोहम्मद इमरान अत्तारी सगे अत्तार अर्ज कर रहा हूँ। सवाल है कि बाज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हज फर्ज हो जाता है, अब उनके पास इतना ही माल है कि वो अकेले हज कर सकते हैं, अब वो अगर हज करने नहीं जाते हैं और पूरी फैमिली को उमरा करा देते हैं तो क्या वो गुनाहगार होंगे? इस पर कुछ खुलासा कलाम फरमाएं। हज फर्ज हो गया तो हज कर लेना चाहिए। अब इसको गुनाहगार तो कैसे कहेंगे, बाद में कर लेगा हज, ताखिर की इसने। जब हज फ़र्ज़ हो गया तो उसी साल करना होगा, फ़र्ज़ है। आप ताखिर करेगा तो गुनाह होगा, और चंद साल तक ना किया तो फासिक है। कितने साल तक? चंद साल तक ना किया तो फासिक। लेकिन ये कि बाहर शरीत में है, जब हज के लिए जाने पर कादिर हो, हज फ़ौरन फ़र्ज़ हो गया यानी उसी साल में, और अब ताखिर गुनाह है तो उसी साल कर ले। हज फ़र्ज़ होने से पहले कर लिया तो फिर गुनाहगार नहीं। और हज पर जाने में कोई ऐसी रुकावट नहीं थी जो जिसको ये कहा जाए कि शर्त यानी कि कोई कम नहीं हो रही थी, हज फर्ज था, तो अब इसको हज फर्ज ही करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद नदीम अब्बासी, मोटर मैकेनिक का काम करता हूँ। अदर साहब भी सवाल पूछ रहा है, जो गाड़ी वाले सामान छोड़ जाते हैं वो हमारे रखना जायज है या नाजायज है? जो ऐसे कल पुर्जे के जो डैमेज होते हैं, काम के नहीं होते, अगर वो ऐसे अपनी राजी खुशी से छोड़ के जाते हैं तो वो तो आप ले सकते हैं, और जान जान के इसको भंगार में डाल दिया, कचरे में डाल दिया, और वो है काम का, और इस तरह कोई यानी कि चालबाजी की तो सारे गुनाहगार होंगे। या ऐसे ही बोल दिया कि ये किसी काम का नहीं है, बेकार है, और आपको पता है कि ये काम का है, तो ये भी जरा धोखा ही हुआ, झूठ हुआ, और किसी का माल दबाना हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद फरहान कादरी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एक सवाल है कि अगर एक शख्स वितर वाजिब अदा कर रहा है इमाम के साथ बाजमात, और उस पे नींद का गलबा गालिब होता है क़याम में, और जब इमाम रुकू की तरफ जाता है तो वो रुकू नहीं करता, और इमाम रुकू से खड़े होकर सजदे की तरफ जाते हैं तो वो सजदे में चला जाता है, तो क्या उसके वितर वाजिब अदा हो जाएंगे या उसे वापस दोहराने पड़ेंगे? बराए मेहरबानी जवाब अर्ज कर दें। रुकू फर्ज है, फर्ज छूट गया, अगर नमाज के दौरान अगर ये रुकू कर ले, नमाज के दौरान ही कर ले। अब ये इसको करना तो होगा, पहले रुकू करके फिर इसने जो है वो सजदे के अंदर जाना था। नहीं, अगर किसी का सोते हुए रुकन गुजर जाए तो वो रुकन उसको पूरा करना होता है। तो अभी ये जो कंडीशन इनकी है, इसमें तो नमाज इनको दोबारा पढ़ना पड़ेगी। मेरा नाम राशिद है, मैं जनरेटर ऑपरेटर हूँ। जो कस्टमर दुकान पे आते हैं काम कराने के लिए, पेट्रोल भी लेके आते हैं। ये है कि कोई मिस्त्री ऐसा भी होता है कि जनरेटर का पेट्रोल निकाल के साइड पे कर देता है, और कस्टमर को बोलते हैं कि पेट्रोल दूसरा लेके आ जाओ। पेट्रोल लेके आते हैं, उसमें से थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं। जायज़ है या नाजायज़ है, इसका जवाब दिया जाए। अगर पेट्रोल काम का था और निकाल लिया कि ये काम का नहीं है, अरे झूठ और धोखा हुआ, और दूसरा पेट्रोल आया तो उसमें से भी थोड़ा सा इस्तेमाल करके बाकी अगर बचाकर ये सारे पेट्रोल अपने रख रहा है, तो ये एक माले नाहक किसी का रख लेना हुआ। ये तो गुनाह दर गुनाह मुख्तलिफ कई गुनाह हो रहे हैं इसमें। तौबा करनी होगी, जिसका माल है उसको लौटाना होगा, माफी भी मांगनी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये है कि जिससे तरावी की दुआ ना आती हो तो वो किस तरह से यानी कि मैनेज करे, किस तरह से यानी कि तरावी पढ़े? 4 रकात के बाद जो बैठकर वो तस्बीह पढ़ते हैं तरावी की, तो
अगर कोई मसला नहीं आती तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कोई सी दुआ चाहे कर ले, जिक्र अस्कार कर ले, अगर खामोश बैठा है तब भी कोई गुनाह नहीं है। खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा इल्म अमल इस्लाह मुआशरा खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा इल्म अमल इस्लाह मुआशरा फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा